let us start with the next point here. Okay. In this, after discussing the questions in this part of the lesson, we'll move in the next part of your chapter, the 100 dresses, part 1. This is the third session. What happened next? That is, last time we had discussed in what way was Vanda different from the other children. Second, did Vanda have 100 dresses? क्या Vanda के पास 100 dresses थे? एक सवाल उठता है. And the last point is, why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Vanda? Is she also like Vanda or is she different? क्या वो Vanda जैसी है या फिर वो अलग सी है? Okay. So coming to the exact point now. Today, even though they had been led to school, they means here both the girls. Okay, Peggy as well as another student who is mentioned, that is Maddie. भले वो उस दिन लेट हो गए थे स्कूल में. Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. Maddie को इस बात की खुशी थी, okay, कि कम से कम आज किसी का मजाक तो नहीं रहेगा या किसी का मजाक तो नहीं उड़ने वाला. इस बात की उसे खुशी थी कि वैंडा भले एब्सेंट है लेकिन आज कम से कम मजाक तो नहीं बनेगा किसी का. इस बात की खुशी थी उसे. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. और फिर वो मैथमेटिक्स का जो भी सम था उसको किस तरह से विदाउट थिंकिंग मच, किसी चीज के बारे में ज्यादा गहराई में न सोचते हुए यस सॉल्व करना. दैट इज कॉल्ड एज हियर टू वर्क समथिंग इन अ absent-minded manner. And now 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note. Now what is here the meaning of the given sentence? Understand it very properly, all of you. So please clear your concepts, otherwise you will be asking or having lot of doubts in your mind that what does that sentence mean. Okay, so clear the doubt here properly, all of you. Now when they started solving the sums, 8 times 8, okay, that is a multiplication is there. Let's see, let us see. चलो हम देखते हैं ऐसा. ओके, मैडी अपनी दोस्त पेगी के साथ शेयर कर रही है. She wished she had the nerve to write Peggy a note. उसकी एक इच्छा थी, ओके, कि उसके अंदर वो हिम्मत हो या उसके अंदर वो ताकत हो, to have the nerve, to have that potentiality or have that capacity or ability to write Peggy. Peggy को कुछ लिखकर बताए, एक नोट लिखकर बताना चाहती है वो. उस नोट में मेंशन करना चाहती है कि आखिर उसे कौन सी चीजें अच्छी लगी और कौन सी नहीं लगी. ओके, उसके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि वो पेगी को एक नोट लिखे. क्यों? Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. शायद उसको ये पता था कि उसके अंदर उतना करेज नहीं है, उतनी एबिलिटी नहीं है या उतनी हिम्मत नहीं है सीधा सीधा पेगी को जाकर उसके मुंह पर कुछ बोल दे. राइट आउट मीन्स स्ट्रेट टू पेगी. और क्या जाकर बताए? टू से, हे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. उसको ये बताने में हिम्मत नहीं जुट पा रही थी. किसे? मैडी को ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पेगी को जाकर सीधा सीधा ये बता दे कि पेग, हम एक काम करते हैं, आज से हम आज से वेंडा को चिढ़ाना बंद कर देते हैं, ये पूछना बंद कर देते हैं कि आखिर उसके पास कितने ड्रेस हैं, उससे अच्छा रहेगा. लेट अस स्टॉप. शी इज गिविंग सजेशन, नॉट आस्किंग क्वेश्चन. ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द sentence. We'll think about direct and indirect speech of the following sentence and try to convert it in a proper channel. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने arithmetic यानी कि जो mathematical sum दिया था उसको solve करने को, जब वो खत्म हो गया तो उसने सोचा कि चलो मुझसे हिम्मत तो नहीं जुट पाएगी कि मैं सीधा सीधा बात कर लूं, लेकिन ओके, एक बार नोट लिखकर उसको भेज देती हो. पेगी को आमने सामने वो नोट दे देगी और कंफर्म करना चाहेगी कि आखिर इस मामले को वो हमेशा के लिए मिटा सकते हैं कि नहीं.
Okay, then next what happens here? She did start a note to Peggy, writing the note especially for Peggy. And suddenly what happened? Suddenly she paused, she stopped, she halted and shuddered. Shuddering, it's a kind of a giving a kind of a shook for oneself. शुक करना या मूव होना. अरे ऐसा लिखूं कि नहीं लिखूं, ऐसा सोच में डूबना. That is what is shuddering. Okay, again I repeat the word SHOOK, shook. Okay, to that is the past tense of the to shake. Okay, तो वो मीनिंग याद रखना है इसका, shuddered का मतलब अपने आप से जैसे हिल जाती है, सोच उस विचार को लेकर ही थोड़ी सी घबराहट होती है कि ऐसा लिखूं या नहीं लिखूं. फिर उसके बाद क्या करते हो? शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. अपने आप को वो स्कूल यार्ड में इमेजिन करती है, पिक्चराइज करती है, अपने आंखों के सामने वो पिक्चर लाती है. स्कूल यार्ड में वो अकेले ऐस खड़ी है. अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स. और फिर वो अपने आप को खुद को इमेजिन करती हुई, यस क्या इमेजिन करती है कि वो खुद अब वैंडा नहीं है, अब टारगेट बनने वाली कोई और नहीं, बल्कि वो खुद होगी, मैडी होगी. और पेगी जैसी न जाने ऐसी जो मजाक उड़ाने वाली जो लड़कियां है, उनका अगला टारगेट वो खुद बन जाएगी. वो थोड़ा सा पल भर के लिए इमेजिनेशन में चली जाती है, पिक्चराइज करती है, इमेजिन करती है कि अगला शिकार इन गर्ल्स का पेगी और बाकी उसकी दोस्तों का अगला शिकार मैं ही रहूंगी, क्योंकि वैंडा तो है नहीं. अब मजाक उड़ाने के लिए उनके पास कोई तो होना चाहिए, इसलिए शायद वो खुद शिकार बन जाएगी. एंड नाउ Peggy might ask her where she got the dress that she had on. और पेगी पता है इस बार क्या पूछेगी? अगर मैडी को पूछेगी, वैंडा को तो पूछती थी वो कितने ड्रेस है तेरे पास, कितने जूते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन मैडी को पूछेगी तो क्या पूछेगी? मैडी को क्या पूछेगी वो कि तूने ये जो ड्रेस पहना है ये तुझे किसने यस हैंड टू हैंड किया था. ओके, या किसका पुराना ड्रेस था ये. और ये पुराना ड्रेस जो वो पहन के आती थी, जो उसने खुद एक्सेप्ट किया था, वो किसी और लड़की का जो उसको दान में मिला हो या उसको ऐसे ही किसी ने दे दिया हो, उसको लेकर शायद उसको इंसल्ट जैसा फील होगा. ओके, एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. ध्यान देना. और उसको जवाब में ये क्या बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने कपड़ा पहन के रखा है ये किसी यस खास करके पेगी के ड्रेसेस में से एक ड्रेस है. पेगी कभी इसको एक जमाने में पहनती थी, लेकिन वो पुराना हो चुका है. और ओके, बहुत सारे ड्रेसेस में से एक ड्रेस था जो उसकी मम्मी, ओके, किसकी मम्मी? मैडी की. ओके, Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in the room 13 would recognize it. Tried to disguise something. To disguise something means to hide something, to conceal something. किसी चीज को छुपाना, और ऐसा किसी को पता ना चले कि ये किसी का पुराना ड्रेस है, इसलिए उसके ऊपर कुछ नई सिलाई का काम होता था, ट्रिमिंग्स होती थी, डिजाइनिंग होती थी, डेकोरेशन होती थी, ऑर्नामेंटिंग होती थी. ओके, और ऐसा किसी को पता ना चले इसलिए ट्रिमिंग किया गया था, ताकि रूम नंबर 13 में कोई उस ड्रेस को पहचान ना सके. ओके, आई होप यू हैव गॉट द होल सेंटेंस वेरी करेक्टली. उसकी मम्मी ने क्या किया था? उस सेंटेंस को थोड़ा, सॉरी, ध्यान से समझना उस सेंटेंस को. उस सेंटेंस में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो ये डर महसूस कर रही थी कि अगला शिकार वो खुद बनेगी और उसको पुराने ड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, और उसकी मम्मी ने उस चीज को छुपाने के लिए क्या किया है, उसके ऊपर ट्रिमिंग की हुई है, खास करके उसको पहचान में ना लाया जा सके. ना, if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. If only, अगर सिर्फ ऐसा होगा, अगर पेगी ने खुद डिसाइड किया कि ओके, if only Peggy would decide of her own, और वो खुद की इच्छा से, accord से, accord means to have one's wish, have one's desire, खुद की desire से ही, okay, to stop having fun with Wanda,
अगर वो तब पॉसिबल होगा जब वो खुद डिसाइड करेगी पेगी कि आज के बाद मैं कभी वैंडा का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, तो ही ये पॉसिबल है। और ये सब जब वो यस नोट में लिख रही थी तो उसमें ये इमेजिन कर रही थी। नोट लिखने के पहले थोड़ी सी शडर हुई, शडरिंग के बाद वो इमेजिन करती है कि अगला शिकार वो खुद बनेगी। और उसने बाद में ये भी मेंशन किया है कि ये सब कुछ तभी बंद होगा जब वो पेगी खुद अपने आप से डिसाइड करेगी, खुद उसकी इच्छा जब होगी कि वो आज के बाद वैंडा का कभी कोई मजाक नहीं उड़ाएगी। लेकिन ठीक है, ओ वेल, चलो जो भी होगा सो होने वाला है। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। मैडी ने अपने हाथों को अपने बालों से इस हल्के से घुमाने की कोशिश की। और टू रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट शॉर्ट, ओके, जो बहुत लंबे बाल नहीं थे, शॉर्ट किए हुए थे, ब्लॉन्ड हेयर दैट इज गोल्डन हेयर, एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। और उसने अपने बालों को किस तरह से संवारने की, यानी कि कैसे हाथ घुमाने की कोशिश की कि कहीं वो अगला शिकार वो तो नहीं बनेगी ना, और उन विचारों को दिमाग से हटाने की कोशिश की। ओके, एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स, अनकंफर्टेबल जो चीजें उसको महसूस हो रही थी, ऐसे विचारों को वो अपने दिमाग से अपने हाथों से जैसे बालों में हाथ घुमाते, तो ये खास करके एक इंडिकेशन मार्क होता है कि हम किसी चीज को लेकर परेशान हैं। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई चिढ़ाता है नहीं चिढ़ाता है, क्या फर्क पड़ने वाला है, या मेरी दोस्ती में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा उसके मन में सवाल उठा। स्लोली मैडी tore into bits the note she had started। और फिर हल्के से एकदम स्लो मैनर में मैडी tore those or tore the whole piece of the note into the small pieces, tore into bits, into the pieces the note she had started, जो उसने नोट शुरू कर दी थी लिखने की, उसे वापस फाड़ दिया उसने। She was Peggy's best friend। आखिर देखा जाए तो पेगी की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, और उसे यकीन था कि शायद वो उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और उसे ये भी पता था कि पेगी उस रूम की सबसे चाहती या चहेती लड़की थी। सब जन उसे पसंद करते थे, खास करके उसके क्वालिटीज की वजह से या उसके अलग अलग प्रकार के मेथड्स की वजह से। क्योंकि हमने ऊपर ये भी देखा कि वो खास करके तभी किसी का मजाक उड़ाती है जब उसे कोई चीज झूठ जैसी लगती है, ओके, या उसे लगता है कि ये सब गलत है, तभी वो किसी का मजाक उड़ाती थी, वरना ऐसा वो डायरेक्टली कभी मजाक उड़ाती नहीं। द नेक्स्ट, पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। पेगी शायद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है उसके गलत कुछ करने की, एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, जो बिल्कुल सच में गलत है, तो शायद ओके ऐसे उसे लगता है कि अगर वो कोई चीज गलत है तो उसको लेकर वो कुछ भी नहीं बोलेगी। वापस बोलता हूँ उस सेंटेंस को, पेगी कुड नॉट पॉसिबली, पेगी शायद से नहीं करेगी, ऐसा लिखा है, करेगी तो सही लेकिन शायद से पॉसिबिलिटी कम है। ओके, कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, जो सचमुच में गलत है, ओके, तो उसको लेकर वो परेशान नहीं होगी। लेकिन कोई गलत है लेकिन उसको सच बता रहा है, तो उस मामले को लेकर वो यस बखेड़ा खड़े करती है। वापस बोलता हूँ तीसरी बार, पेगी गलती से भी जो चीज ऑलरेडी उसे पता है कि वो गलत है और उसे कोई ना कोई गलत बोल रहा है, तो उसको लेकर वो कोई बखेड़ा नहीं खड़ेंगे। लेकिन अगर कोई चीज गलत है लेकिन उसे कोई व्यक्ति सही बोलने की कोशिश कर रहा है या उसका यस गलत तरीके से यस बताने की कोशिश कर रही है, तो उसका वो बैंड बजा के छोड़ती है, ऐसा उसे लग रहा था। She thought means who thought like this? Maddie thought like this. And now, as for Vanda, she was just some girl who lived up on the Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. अगर वैंडा की बात करें तो वो एक ऐसी लड़की है, अकेली लड़की, ओके, एक साधारण सी लड़की जो बॉगिंस हाइट्स के रीजन में रहती है, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और जो आमतौर पे अकेले ही अपनी ही धुन में खोई रहती है, अपने आप से यस अपनी दुनिया में खोई रहती है, इसलिए शायद उसका मजाक उड़ाया जाता होगा। She scarcely
ever said anything to anybody, or rarely या scarcely, okay, कभी कभार गलती से कुछ मुंह से बोला तो बोला, वरना वो किसी से कोई बात करती नहीं थी. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वो सिर्फ तब बोलती थी जब उसको कोई आकर ये पूछता था कि तेरे पास कितने सारे ड्रेसेस हैं. सिर्फ उस वक्त ही वो स्कूल यार्ड में आकर इसका जवाब देती थी, वरना वो किसी से कोई भी आलतू फालतू या बिना काम की कोई भी बातें नहीं करती थी. इधर की उधर की, किसका कैसा क्या है क्या नहीं है, कौन कैसा है, क्यों है, किस लिए है, ये सब कुछ भी बोलो जिंदा ही रहने वाले हैं. आप कितनी भी बुराई निकालो तो भी जिंदा रहेंगे, अच्छा बोलो तो भी जिंदा रहेंगे. इसलिए बेहतर है हम किसी दुनिया में उलझन में खोए ना रहें. अपनी खुद की सुने, खुद के बारे में सोचें और खुद के बारे में सोचकर कुछ अच्छा सा पॉजिटिव माइंडेडली आगे बढ़ते रहे. हाँ, किसी के लिए अगर आप अच्छे विचार करते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन बुरा तो कम से कम मत कीजिएगा. The next, Maddie remembered her telling about one of her dresses. Maddie remembered her telling. Maddie को अभी भी याद था कि कैसे उसने मतलब यहाँ पर कौन है वो ध्यान में लेना. Remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant, yes, jungle green with a red sash. ये सब बातें, सब कुछ किसने बताई थी? याद रखना अच्छे से. ये कौन किसको बता रहा है ये बहुत जरूरी है. ये सब कुछ वो किसके बारे में बात करिए? वैंडा के बारे में. मैडी वैंडा के बारे में सोच रही है. उसे अच्छे से याद है कि कैसे उसको ड्रेसेस के बारे में एक बार पूछे जाने पर उसने पेल ब्लू कलर के, ओके, वो भी कलर्ड ट्रिमिंग्स के बारे में कैसे समझाया था. मैडी रिमेम्बर्ड, मैडी को अचानक से याद आता है कि कैसे वैंडा ने उसे एक बार अपने पास जो उसका जो ड्रेस है जिसका कलर पेल ब्लू कलर है, वो भी कलरफुल टाइप की उसके ऊपर डिजाइनिंग है, उसके बारे में बताया था. और ये भी बात याद आ रही थी उसे. एंड शी इवन रिमेम्बर अनदर, और एक ड्रेस के बारे में उसने बताया था. दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन. एक ब्रिलियंट टाइप का ग्रीन कलर का, जंगल के जैसे हरा भरा रंग था उसके एक ड्रेस का, विद अ रेड सैश. उसके साथ एक रेड कलर की सैश भी है. यस, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेड स्कार्फ. स्कार्फ, SCARFF, ओके, SCARF, ओके, डबल एफ नहीं बोला, SCARF, ये उसका मीनिंग है. या दुपट्टा बोल सकते हो उसको. ठीक है, और भी वर्ड्स आते हैं उनके लिए. और आगे उसने और भी बातें की है. एंड व्हाट वाज द कन्वर्सेशन? यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. उसे ये भी याद है, ओके, कि कैसे गर्ल्स ने, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, ओके, प्रिटेंडेड दिखावा, टू शो ऑफ करना, एडमायरेशन to, okay, say something good about someone. और इन एक्चुअली यहाँ पर मीनिंग एक्चुअली अलग निकलता है. फॉल्सी प्रेजिंग करना, फॉल्स टाइप का प्रेज करना, प्रिटेंडेड टाइप का प्रेज करना. ओके, प्रिटेंडेड एडमायरेशन का मतलब दिखावे के जैसा किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, एडमायर करना, प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना. ओके, और ये वाक्य किसने बोला था? किसी, ओके, द गर्ल्स, जो भी लड़कियां थी वहां पर, जैसे ही उसने बोला था, वैंडा ने बोला था कि उसके पास ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का एक रेड सैश के साथ ड्रेस है, ओके, ये कपड़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था. तो लड़कियों ने उसे झूठ मूठ का हंसते हुए, झूठ मूठ की प्रशंसा करते हुए क्या कहा था? अरे तुम ऐसा ड्रेस पहनोगी तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की जैसी लगोगी. ओके, ये खास करके गर्ल्स ने बताया था. ओके, सो अंडरस्टैंड द सेंटेंस प्रॉपर्ली, एंड इफ एनी प्रॉब्लम इज क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन, ओके, आस्क मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. अगेन आई रिपीट, गर्ल्स ने हंसते हुए बोला था जब वैंडा ने ये बोला था कि उसके पास ग्रीन कलर का, ब्रिलियंट ग्रीन कलर का ड्रेस है, तो लड़कियां उस पर हंस पड़ी. और किस तरह से हंस पड़ी? जैसे वो उसकी झूठ मूठ की प्रशंसा कर रही थी. और क्या टॉन्ट मारा उन्होंने? अच्छा, तेरे पास ग्रीन कलर का ड्रेस है
तो तू तो बिल्कुल क्रिसमस के पेड़ के जैसी लगेगी, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी, तू ही पहनती बैठ उसको अगर तेरे पास ग्रीन ड्रेस है तो। ऐसा वो जानबूझ के मजाक उड़ा रही थी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet. Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब आगे का जो एक कंटेस्ट रखा हुआ था उनके स्कूल में, ओके, थिंकिंग अबाउट वैंडा एंड हर 100 ड्रेसेस, वैंडा के 100 ड्रेसेस के बारे में सोचना जो उसके क्लोसेट में एक लाइन में, ओके, उसने बराबर से रखे हुए हैं। तो उन चीजों के बारे में सोचते हुए मैडी बिगैन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग। मैडी के दिमाग में ये सोच, यस, अंदर से उसे क्या बता रही थी कि उनके स्कूल में जो कंटेस्ट है, ओके, जो कंपटीशन होने वाला है ड्राइंग और कलरिंग का, उसमें आखिर कौन जीतेगा? वैंडा जीतेगी या वैंडा के इस साथ जो भी गर्ल्स से पार्टिसिपेट होने वाली वो जीतेगी? फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स की बात करें, फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग द मोटर बोट्स। ये दो प्रकार की ड्राइंग्स निकालनी है। गर्ल्स के लिए ये जो कंटेस्ट था, ये जो कंपटीशन थी, उसके अंदर किस चीज का समावेश था? ओके, कंसिस्टिंग, टू हैव, टू होल्ड, ऑफ डिजाइनिंग द ड्रेसेस, ड्रेस का पिक्चर निकालिए और उसको डिजाइन कीजिए या उसको कलरफुल कीजिए। और अगर बॉयज की बात करें तो उन्हें डिजाइनिंग करनी थी, लेकिन किस चीज को? मोटर बोट्स को। मोटर बोट्स तो पता ही है सभी को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, पानी में चलने वाली बोट्स होती है या ऐसी कोई मोटर बोट्स होती है तो आमतौर पे डिजाइनिंग की जाएगी। और इस तरह की इस उनके बीच में क्या होगी? इट्स अ काइंड ऑफ अ कंटेस्ट। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट? Probably Peggy would win the girls medal। और उन्हें यकीन था, यस, पॉसिबिलिटी थी कि अगर ये जो रेस है या ये जो उनका जो कंटेस्ट है ड्रेसेस के बीच का कलरिंग का जो ये कंटेस्ट है, that will be surely won by the, yes, the girl especially who is very famous, that is the, yes, Peggy। Peggy ही इसे जीतेगी और गर्ल्स का मेडल उसे दिया जाएगा, शायद ऐसा उसका अंदाज था। Because Peggy drew better than anyone else in the room। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस है, अंडरलाइन करके रखना। उसके बारे में हम जब डिग्रीज का, मैंने ऑलरेडी आपको जो वीडियो भेजा है उसमें अगर आप देखते हैं, ओके, तो उसमें आसानी से आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। Peggy drew better than anyone else in the room। अगर पेगी बेटर निकालती है बाकी जन के कंपैरिजन में, तो बाकी जन कैसे निकालते हैं? ओके, नो वन एल्स इन द रूम, ओके, drew as, या so भी डाल सकते हो, as good as Peggy। Again I repeat, no one else in the room, no one else in the room drew as good as Peggy। ओके, फुल स्टॉप। यही चीज अगर आप सुपरलेटिव में ले जाते हो तो ऑफ ऑल डालकर, यस, बेस्ट, Peggy drew the best, yes, the best कुछ भी आ सकता है, the best drawing, the best thing, yes, in the room। So be very careful here। of all डालना है तो डाल सकते हो, of all नहीं डालते हो तो भी चलेगा, कंपलसरी नहीं है। of all का उपयोग आप एंड में चिपका कर भी करते हो तो भी करेक्ट होगा, of all को हटा देते हो और फुल स्टॉप दे देते हो तो भी चलेगा। और इतना भी लिखते आप, Peggy drew the best, ओके, तो भी एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा। क्लियर? So if any doubt is here, you can ask me the doubts later on at the end of the session or after the, yes, sessions in the next point। Then at least that is what everybody thought। कम से कम सब जन तो यही सोच रहे थे कि अगर ये कंटेस्ट कोई जीतेगा तो कोई और नहीं बल्कि पेगी ही जीतेगी। She could copy a picture in a magazine or some film star's head
so that you could almost tell who it was. उसके अंदर किसी चीज को कॉपी करने की जो कैपेसिटी थी वो कैसी थी? She could copy a picture. वो किसी भी पिक्चर को इस तरह से कॉपी कर देती है, ओके, इन अ मैगजीन, एक तो किसी मैगजीन में, और सम फिल्म स्टार्स हेड, या किसी फिल्म स्टार का जो चेहरा है उसको ध्यान में रखकर उसका ड्रेस का पूरा पिक्चर वो आराम से ड्रॉ कर सकती है, ओके, सो दैट, ताकि क्या हो सके, सो दैट इज अ कनेक्टर, सो दैट खास करके कॉम्प्लेक्स का कनेक्टर है, सिर्फ दैट हट गया तो वो कंपाउंड का हो जाएगा, सिर्फ सो डालते हैं तो इसमें नहीं करना है हमें, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सो दैट एक साथ में है तो कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस बनता है। ये छोटी छोटी बातें मैं जब हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये मैं ऐड करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, और कम से कम उस ड्रेस को खास करके एकदम हल्के से पेंसिल से शेडिंग करने के बाद आप आराम से बता सकते हो कि ये कौन हो सकता है। पेंसिल से शेडिंग करने के बाद आपको अंदाज हो जाएगा ये व्यक्ति, जो ये ड्रेस उसने जिसने भी डिजाइन किया हुआ है उसमें ये व्यक्ति कौन है। सिंपल एंड सोबर कंसेप्ट है। सादी भाषा में किसी व्यक्ति का पिक्चर निकालने के बाद उसके ऊपर ड्रेस का कोड निकालिए, ओके, और ड्रेस का कोड निकालने के बाद आप उस चेहरे को आराम से पहचान जाएंगे कि वो मैगजीन में से या किसी फिल्म स्टार के चेहरे को जो बनाया गया है वो कौन व्यक्ति है, ये समझाने की कोशिश की गई है। द नेक्स्ट, ओ मैडी वाज श्योर पेगी वुड विन, मैगी को पूरा यकीन था, ओके, मैडी को पूरा यकीन था कि पेगी ही इसको जीतने वाली है। वेल, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, ठीक है, जो भी मामला है, लेकिन इसका रिजल्ट टीचर क्लासरूम के अंदर, ओके, विनर्स को अनाउंस करेगी, ओके, देन दे वुड कम टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रिजल्ट, और उसको जब डिक्लेयर होने के बाद डिक्टेट किया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा, ओके, सॉरी, डिक्लेयर किया जाएगा, उन्हें पता ही चल जाएगा कि आखिर रिजल्ट में कौन पास हुआ है। इसमें एक वर्ड का मीनिंग भी देख लीजिए पहले से, ड्रिजलिंग, अ वेरी लाइट रेन वाज फॉलिंग। अब ध्यान से सुनिए, द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, यहाँ से कहानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टचिंग स्टोरी यहाँ से ओरिजिनल में। यस, यहाँ तक हमने देखा कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या कंटेस्ट रखा हुआ था, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन किसका कैसा मजाक उड़ाता था, कैसे, ओके, उनका क्लासरूम का सिचुएशन था। यहाँ से जो स्टोरी है आपको लगभग वो पूरा फील कराएगा कि हमें लाइफ में कभी किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, दूसरे दिन हल्की सी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, मैडी और पेगी दोनों जल्दी जल्दी, जो पेगी के पास अम्ब्रेला थी, जो छाता थी, उसके अंदर, यस, दोनों के दोनों स्कूल में फास्ट पहुंच रहे थे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, और इसमें कोई शक नहीं उठता है या शक नहीं होगा आपको, नेचुरली ऐसे दिन जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, they didn't wait for Vanda Petronsky on the corner of Oliver Street, और आज जब उन्हें यह पता था कि रोज की तरह वैंडा पेट्रोन्स्की आज भी नहीं आने वाली है, तो शायद, यस, आज उन्हें कॉर्नर पर ओलिवर स्ट्रीट पर, खास करके बोगिन साइड्स के आगे जो ओलिवर स्ट्रीट है वहां पर वैंडा के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, और वो उन स्ट्रीट्स में से एक है जो बहुत दूर है, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, और ये रेल रोड ट्रैक्स के आसपास से गुजरने वाला, यस, रास्ता है, या उसके नीचे से गुजरने वाला रास्ता है। एंड अप द हिल, और वहां से निकलकर वो सीधा हिली एरिया की तरफ बढ़ता है। लेड टू बोगिन साइड्स, और ये रास्ता हिल एरिया के बोगिन साइड्स की तरफ ही जाता है। एनीवे, दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, जो भी मामला है उन सब चीजों को छोड़ दीजिए, आज उन्हें किसी भी हाल में लेट नहीं होना है, किसी भी हाल में जल्द से जल्द उन्हें क्लासरूम तक पहुंचना ही है, बिकॉज टुडे वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक आपको लेसन का कंटेंट जो है शायद से अच्छे से ध्यान में आया होगा। अब ओके, आगे का जो कंटेंट है हम कंटिन्यू करेंगे, क्लियर, just after a minute only.